Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss very important topic, and that is merchandising inventory or a trading concern. Let me know if you have any problem in this lecture. There are three types of businesses. You must have get the introduction of all of these three businesses in introduction to business course in the very first semester. The three types of businesses are service concern, merchandising or trading concern, and manufacturing companies. The service concerns, if you talk about it, the doctors, teachers, lawyers, travel agents, marriage bureaus, these retail agents, property agents, all these are basically service concerns. All these are the examples of service concerns because in these businesses, we just provide services to the customers, like doctor is providing service to the patients, like lawyer is providing services to the clients, and by offering services, by rendering services, we they earn profit. Like I'm in a teaching sector, I'm a teacher, I provide services to my students, I give them guidance, and by this I earn money. So these are the service concerns, and in service concerns, level of inventory is somehow very low. We don't need this much inventory. But if you talk about merchandising or manufacturing concerns, in merchandising concern is also termed as trading business. In trading business, if you see the examples of trading concern, these are medical stores that are इन द सर्कुलर ऑन सर्कुलर रोड पे, ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेसेस हैं, जनरल स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, टाइम मार्ट्स हैं, all these are the examples of trading concerns, because trading business is a business which buy ready to sell product from the wholesaler or from the retailer or from the company and sell it to the next level. There is no need to add value in the product. You sell ready to buy goods. And definitely inventory is basically the cost that values to such businesses a lot. And if you talk about the manufacturing concern, that is a business Ashraf Sugar Mill, Asia Ghee Mill, or all the companies. These basically are the businesses that buy raw material from different suppliers and then process that raw material in the presence of labor, and by applying certain manufacturing overhead cost, and then converts them into finished goods, and then sell these that finished goods to the ultimate customers. If you talk about the trading concerns and the manufacturing companies, inventories are very valuable asset for them, because अगर एक जनरल स्टोर में भी देखें आप, एक मेडिकल स्टोर में, the basic thing is the inventory, the product जिसकी हम आपको नज़र वहाँ पे आ रही होती है, उसकी वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. एक आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप की बात कर लें, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर आपको जो मेजर कॉस्ट होती है वो इन्वेंट्री की होती है, लाइक फ्रिज, फ्रीजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टीवीज, water coolers, cooking range, fans, and all and all and all. Like if you talk about a mobile company, sorry, mobile shop, जैसे आप किसी प्लाजा में चले जाएं, तो उसमें जो मोबाइल डिस्प्ले में है, जो प्रोडक्ट डिस्प्ले में है, जो इन्वेंट्री डिस्प्ले में है, और जो उनके पास स्टॉक मेंटेन है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स वाई inventory accounting is very much crucial for these two businesses, trading concerns and manufacturing concerns. Our today's lecture is all about the inventory management and the type of inventories and the inventory valuation systems, and how we compute cost of goods sold and cost of goods available and ending inventory for our financial statements like income statement and balance sheet. Let's talk about it. First of all, if you talk about the merchandising concern or the trading concern. So the trading concern basically by, like if you are wholesaler, if you are a wholesaler, तो आप कंपनी से चीज़ खरीद कर रिटेलर को आगे प्रोवाइड कर देते हैं, और जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से बाय करके आगे क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा होता है, कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा होता है. सो यहाँ पर आपके पास इन्वेंट्री होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, दैट इज़ ऑलवेज इन अ रेडी टू सेल कंडीशन. लाइक एक आपका घर के साथ जनरल स्टोर है, तो वो जो सुपर का बिस्किट है वो रिटेलर से ख़रीदेगा और आप आगे कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं. उसमें आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना पड़ता. लाइक सुपर का बिस्किट आपने लिया 6 का पैक्स में, वो आपको एक डब्बा बॉक्स बाय करते हैं और 1 बाय 1 सेल कर देते हैं, या समटाइम्स आपका पूरा बॉक्स सेल आउट हो जाता है. उसमें आपको वैल्यू ऐड नहीं करनी पड़ती, रेडी टू सेल होती हैं, आपने बस खरीदी और एज इट इज़ सेल आउट कर दी. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैंने अभी जिक्र किया कि आप जैसे रॉ मटेरियल बाय करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ अ sugar mill, then you buy sugar cane from the farmers,
and then you put it into process, and in process you have to add direct labor, like there is an operational staff that used to that are working on the machines that operate those machines to convert them into finished goods. And definitely there is a cost of electricity, there definitely there is a cost of oil and furnace and generators and gas, जिस पे बेसिकली आप वो उस चीज़ की बॉइलिंग करते हैं और उसको जो सब कुछ प्रोसेस होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंडर हो रहे होते हैं और आप फिनिश गुड्स में उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, फिर आप ये फिनिश गुड्स डिफरेंट शॉप्स पे जाके सेल आउट कर रहे होते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक in a manufacturing concern, there are three types of inventories: raw material inventory, work in process inventory, and finished goods inventory. Now, what is the basic issue that we are facing right now? The things are simple till up to goods available for sale. How is it simple? Because first of all, you have a beginning inventory. It means at the start of an accounting period, at the start of an accounting period, the ending balance of the previous period, if you are in a running business, then the ending balance of the previous period is considered as the beginning balance of the next period. That is this much. If you are starting your very own new business, then the beginning level of inventory is zero. Like for example, if I give you example of your real life, then हमारे घर में चीनी चावल और गंदम इसका हमेशा स्टॉक होता है, लाइक इन आवर फैमिलीज. तो लेट्स से जैसे अब आजकल सीज़न है चीनी और चावल, हम लोग फरवरी मार्च के महीने में बाय कर लेते हैं, ख़रीदते हैं, पूरे साल के लिए ख़रीद लेते हैं. तो अगर लेट्स से बिगनिंग इन्वेंट्री क्या है, अगर मैं सिर्फ चीनी की बात करूँ, तो लेट्स से मेरे पास 5 kgs के 2 पैकेट्स पड़े हुए हैं पिछले साल वाले. तो वो पिछले साल की जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो मेरी बिगनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी इस अकाउंटिंग पीरियड की. तो मैं कहूँगी ये साल, अगर लेट्स से मैं फरवरी में बाय करती हूँ या मार्च में बाय करती हूँ, तो इस साल के शुरू से पहले पहले ही मेरे पास 10 kg चीनी मौजूद है. दैट इज़ माई बिगनिंग इन्वेंट्री. और उसके बाद जो होता है स्टूडेंट्स, जो न्यू यूनिट्स आप परचेज़ करते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री में, आपने जो न्यू यूनिट्स परचेज़ किए, लेट्स से अब हमारे घर की ज़रूरत है कि हम 50 kgs की एक बोरी परचेज़ कर लेते हैं चीनी की, वो हमारे पूरे एक साल के लिए इनफ होती है. तो हमने क्या किया, हमने 50 kg की एक नई बोरी परचेज़ कर ली. अब उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, जैसे आजकल मार्केट में 4,000 से 5,000 के दरमियान आपको 50 kg की एक चीनी की बोरी मिल रही है. लाइक वो रिफाइंड शुगर है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट है, और बारीक चीनी है उसकी कॉस्ट डिफरेंट है. तो आप जो भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, सो जो न्यू इन्वेंट्री आप परचेज़ करते हैं उसको आप बिगनिंग इन्वेंट्री में ऐड ऑन कर लेते हैं. दैट रिजल्ट्स इन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. So the beginning inventory plus the purchases that are made in this current accounting period gives rise to goods available for sale. It means that these are the things with a cost of $640 that are available in the business for sale purpose. Goods available for sale. Now, things are easy till up to this point of time. Now, this cost needs to be allocated between the two sections. One amount that is a part that will become the part of the income statement, and one amount that will become the part of the balance sheet. Now, over here, our system implies, it means we cannot segregate this cost uh, until unless we understand that there are certain systems, inventory valuation systems. आपकी कंपनी, जिस कंपनी को आप एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं, उसमें डिफरेंट सिस्टम्स चल रहे होते हैं. जिस सिस्टम को वहाँ पे चल रहा होगा उसके मुताबिक आप CGS को कंप्यूट करेंगे. CGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. CGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो आपका जो भी सिस्टम होगा आप उसके मुताबिक CGS को कंप्यूट करेंगे, एंड द रिजल्टिंग बैलेंस विल बिकम द पार्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री. Now, this is the term CGS that is introduced in this lecture. सर्विस कंसर्न्स में CGS का कोई ताल्लुक नहीं होता. हम लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल सर्विस कंसर्न्स के ऊपर सीखा, जो कि मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस होता है और उसकी ट्रांजेक्शन्स मोस्ट सिंपलेस्ट होती हैं. जहाँ पे अब डिफरेंस आ रहा है उन डिफरेंसेस को हम स्टडी करेंगे इन अ ट्रेडिंग और इन अ कंपनी. सो इन अ ट्रेडिंग कंसर्न और इन अ कंपनी, CGS इज़ अ न्यू अकाउंट. ये बेसिकली हर उस बिज़नेस का पार्ट होता है जिसके अंदर इन्वेंट्री होती है, जिसके अंदर प्रोडक्ट होती है. तो ट्रेडिंग और कंपनीज़ के अंदर, ट्रेडिंग कंसर्न्स और कंपनीज़ के अंदर प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो या रेडी टू सेल बाय प्रोडक्ट्स बाय कर रहे होते हो, उसको सेल आउट कर रहे होते हो. तो जब भी आप प्रोडक्ट्स बेचते हो उनकी कॉस्ट को हम CGS कहते हैं. जितनी प्रोडक्ट्स बिकी हैं, गुड्स सोल्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड, द कॉस्ट ऑफ देम इज द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट.
ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनती है। इससे पहले आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट में सीजीएस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। अब आपके एक्सपेंसेस अकाउंट में एक एक्सपेंस का इजाफा हो गया है, दैट इज सीजीएस। लाइक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट and very crucial expense account of any trading concern or the joint stock company. Now इसकी allocation हम लोग देखते हैं. First of all, friends, we have two systems, like perpetual inventory valuation system and periodic inventory valuation system. But before understanding those systems, we need to clear a few things. In both systems, we have these methods like weighted average, LIFO, and FIFO, but we need to understand certain basic things before going to the evaluation and calculation side. First of all, the gap rules allow you to go for this. It means your generally accepted accounting principle states that a business can adopt any one of the method to show the physical flow of this inventory, right? It is not a violation of any principle or rule to opt any method or not. But in a company, for a joint stock company, it is compulsory to go for perpetual inventory valuation systems. But if you are running a sole proprietorship business, or you are running a sole proprietorship business, or you are running a small medium business, then you can go for periodic inventory system as well. They have no objection on that. Secondly, friends, the second important point is that if the inventory amounts remains the same, inventory cost remains the same, inventory prices remains the same in the market, then there is no difference in any of the system. It means financial statements produced from all the methods would result in the same way. But if you see the market trends, then the prices of the inventories are all the goods are increasing day by day. Like uh, if you talk about a ball paint or a mineral water bottle or a pair of glass, हर चीज़ की कीमत मार्केट में बढ़ रही है. तो प्राइजेस क्योंकि स्टेबल नहीं है, प्राइजेस क्योंकि सेम नहीं है, प्राइजेस के अंदर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, इट मीन्स प्राइजेस आर इंक्रीजिंग. दैट्स वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जिस भी मेथड से बनाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आएगा. दैट्स वाई टू अंडरस्टैंड दीज सिस्टम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिफरेंस सिर्फ इस सिस्टम को अडॉप्शन की वजह से भी आ सकता है. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट before discussing these systems is whatever the method a business is using for the inventory valuation, the dollar amounts that are associated with the income statement and the balance sheet are always the sum of them is always the same amount, right? So you can check in different examples कि जो हम इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट डालेंगे और जो बैलेंस शीट में डालेंगे उसका सम टोटल हमेशा सेम होगा. Now we need to understand these systems. First of all, we talk about the weighted average approach. In weighted average approach, what we do that no matter the prices are increasing in the market, when we buy those units and that become the part of our inventory, तो हम उनकी एक एवरेज कॉस्ट निकाल देते हैं कि ऑन द एवरेज एक यूनिट हमें कितने का पड़ा. लेट्स से अगर एक यूनिट आपने 10 रुपये का लिया है, दूसरा यूनिट आपने 12 रुपये का लिया है, तीसरा यूनिट कुछ अरसे के बाद दोबारा महंगा हो गया और आपने 15 रुपये का लिया है, तो आप इन तीनों कॉस्ट यूनिट्स को इनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं और तमाम यूनिट्स को इक्वल एक ही कॉस्ट असाइन कर देते हैं कि हर यूनिट हमारा इतने का है अप्रॉक्सीमेटली. दिस इज़ द वेटेड एवरेज अप्रोच. एंड इन वेटेड एवरेज अप्रोच लाइफो और फाइफो में बेसिकली यूनिट्स कॉस्ट को हम इक्वल कर देते हैं फॉर ऑल द यूनिट्स, राइट? नो मैटर जो आपने इन्वेंट्री आइटम हाई प्राइस पे बाई किया है, नो मैटर आपने इन्वेंट्री आइटम लो प्राइस पे परचेज किया, उन सब की कॉस्ट को आप एवरेज आउट कर देते हैं. इन फर्स्ट आउट अप्रोच, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, व्हाट डज इट मीन्स? एक आपका स्टोर है, जो आइटम पहले आया है, फर्स्ट इन हुआ है आपके पास, इट शुड बी फर्स्ट आउट. जब आपने उसको सेल आउट करना है तो आपने फर्स्ट इन द ओल्डेस्ट यूनिट जो है, जो सबसे पहले आया था, उसी को आपने फर्स्ट आउट सेल आउट करना है. दैट इज़ फर्स्ट आउट मैथड. It works in the perishable food industry. Like if you are running a bakery like Data, like Rashid Bakers, like Four Seasons की bakery है, तो इसमें
एक केक आपके पास बन के आ रही है, आपके पास पेस्ट्रीज बन के आ रही हैं, आपके पास हलवा बन के आ रहा है, आपके पास ब्रेड रस्क बन के आ रहे हैं। डिफरेंट इनकी जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, अब ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि अगर ये विद इन टाइम सेल ना हो तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो जो केक पहले बन के आया है, जैसे कस्टमर का ऑर्डर आएगा, आप उस केक को सेल आउट करेंगे, राइट। अदरवाइज आपको पता है कि वो ख़राब हो गया, अगर आपकी डिस्प्ले में पड़ा पड़ा तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट को बढ़ जाएगी, दैट्स वाई। तो जो रस्क और जो ब्रेड और जो एग्स और इसी तरह जो कुछ चीज़ें भी आपको बेकरी आइटम्स मिलते हैं, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के थ्रू सेल आउट होते हैं। नाउ इन फर्स्ट आउट में भी देखिएगा स्टूडेंट्स, जो पहले ये चीज़ आपने ख़रीदी थी डेफिनेटली वो सस्ती होगी। लाइक पहले अगर मैदा, चीनी, अंडा, घी, इन चीज़ों से आपके केक्स वगैरह बन रहे हैं तो ये चीज़ें पहले सस्ती थी, और अगर आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद उनको दोबारा रीबाई कर रहे हैं तो फिर वो डेफिनेटली चीज़ें आपको महंगी मिलती हैं। तो जो ओल्डेस्ट यूनिट्स होते हैं उनकी कॉस्ट कम होती है, ओल्डेस्ट यूनिट्स की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है। व्हेन दे सेल आउट, जब आप उनको फर्स्ट आउट कर देंगे, उनको सेल आउट कर देंगे, तो डेफिनेटली वो इनकम स्टेटमेंट में वो चली जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और आपका एक्सपेंस का लेवल क्या हो जाएगा, कम। व्हेन योर एक्सपेंसेस आर शोन एज लेस, योर प्रॉफिट विल बी हाई एंड योर टैक्सेबल इनकम विल बी डेफिनेटली हाई। सो इस केस में आपकी एंडिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होती है, इट मीन्स बैलेंस शीट की अमाउंट ज़्यादा, इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट कम, और आपके प्रॉफिट ज़्यादा और टैक्सेबल इनकम ज़्यादा नज़र आती हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट लास्ट इन लास्ट आउट मैथड, दैट इज़ लास्ट इन, जो फ्रेशली आपका प्रोडक्ट एंटर हुई है, लास्ट इन, सबसे आखिर में जो आई है, न्यूएस्ट यूनिट जो आया है आपके इन्वेंट्री आइटम में, वेन एवर देर इज़ एन ऑर्डर ऑफ सेल, तो आप उसको सेल आउट कर देंगे पहले। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी इसको करेक्शन रिक्वायर्ड है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। कि जो सबसे आखिर में आया है वो सबसे पहले जाएगा, सेल आउट होगा, पहले जाएगा, मतलब कि जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो वो पहले सेल आउट हो जाएगा। नाउ दिस सिस्टम वर्क्स व्हेन जहाँ पे पेरिशेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका एक स्टोर है और उसमें बेसिकली आपने कोई कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है, मेरे आसपास कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, सो इट्स जस्ट लाइक लाइक आपने कोई सीमेंट, बजरी, सरिया, तो ऐसी चीज़ें हैं, ब्रिक्स वगैरह हैं, ईंटें वगैरह हैं, तो अब ये चीज़ें आपको पता है ये ख़राब नहीं होती हैं। सो इसमें क्या है कि फिर आप ये इस मेथड पे भी वर्कआउट कर सकते हैं, लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सामने चीज़ पड़ी है वही कस्टमर के ऑर्डर पे आप उसको सेल आउट कर देंगे। तो जब आपने न्यूएस्ट यूनिट को सेल आउट किया तो न्यूएस्ट यूनिट डेफिनेटली कॉस्टली होगा इन कंपैरिजन टू द ओल्डर इन्वेंट्री। सो इस केस में क्या होगा, क्योंकि न्यूएस्ट यूनिट की कॉस्ट ज़्यादा है, तो जब वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी तो इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस बढ़ा देगी। जब सी आपका एक्सपेंस अकाउंट है, जैसे आपका सी बढ़ेगी, लाइक इस केस में 300 थी, इस केस में 340 हो गई, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट कम नजर आएगा, प्रॉफिट कम होगा तो आपकी टैक्सेबल इनकम भी कम होगी। सो डेफिनेटली इसमें आपके बैलेंस शीट के अंदर वॉल्यूम कम जाता है और आपके इनकम स्टेटमेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपके प्रॉफिट्स कम नजर आ रहे होते हैं। नाउ लेट्स सी द टू सिस्टम्स, क्योंकि लाइफ ऑफ फाइफो और वेटेड एवरेज मेथड हमारे परपीचुअल में भी होते हैं और पीरियोडिक में भी होते हैं। So let's talk about the valuation systems. First of all, we will talk about the perpetual inventory valuation system. Perpetual, as its name depicts, that is a very up-to-dated record system of maintaining inventories on hand. It means that you maintain a proper record of all the inventory items, inventory that is being purchased, inventory items that are in stock, inventory items when they are sale out. All the accounts are properly maintained. All the accounts are properly updated. So, uh, that is the T account of inventory. When you make the T account of inventory, the ledger account of the inventory, whatever is the beginning balance of the inventory is always written on the debit side because it's an asset account. So it has a normal debit balance. Whatever you will purchase in that accounting period will be added on the debit side, like so beginning inventory plus the units purchased in that particular accounting period.
Whenever the units are being sold out, then CGS will be recorded in the inventory credit account section, and the ending inventory, whatever left being written on the debit side. And a proper record of entries are made whenever units are being purchased and whenever units are being sold out. In comparison, we have another system, that is periodic inventory valuation system. um, like uh, it's just a vice versa of perpetual. Like in this approach, we don't maintain a proper record, right? It means only when items are being purchased, they are being recorded. Entries are only made as when units are being purchased, and but no entries are made at the time of sale. It means at the time of sale, we just pass one entry, and we do not count the remaining units that are left in the stock. So ending inventories and the CGS level, they are always being determined at the end of an accounting period. And for the very same reason, this is considered as less work. Um, it means that your accountant needs to maintain less records. Now here is the statement to calculate CGS and ending inventory. This is basically the beginning inventory, in which we add on inventory purchases. Whatever you purchase are made in that particular accounting period. And then you less ending inventory. How you will determine the ending inventory? In a periodic inventory system, ending inventory is being um, actually calculated by a physical countdown method. You determine it by using a physical countdown method, like counting like 1 2 3 4. आप अपने स्टोर में जाते हैं और जाके उसको काउंट कर रहे होते हैं, हेड टू हेड काउंटिंग हो रही होती है कि कितनी चीज़ें पड़ी हैं जो आपके पास पड़ी हुई हैं। आप लेट्स से, मैं सपोज कर लेती हूँ यहाँ पर, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल सपोज करूँ अपने स्टूडेंट्स को आसानी के लिए, तो लेट्स से कि चलिए मैं अपने सोप्स की बात कर लेती हूँ कि अगर मेरे घर में या हम लोग टॉयलेट सोप्स हैं, या ये हम लोग कितने लेकर आए हैं, लेट्स से लक्स के सोप्स हम लोगों ने 10 बाय करनी है, ठीक है। इस अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने 10 सोप्स खरीदे हैं लक्स के, और इससे पहले ये महीना शुरू होने से पहले मेरे पास 2 सोप्स पड़े हुए थे, लाइक इन्वेंट्री में पड़े हुए थे। तो 2 + 10 कितने हो गए? 12। 2 हमारे पास पहले पड़े हुए थे, 10 मैंने इस अकाउंटिंग पीरियड में परचेज़ किए। हर महीने का जो सौदा आया उसके अंदर 10 थे, तो 10 और 2 हो गए 12। जब महीना ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं जाके अपने स्टोर में खुद चेक करूँगी कि कितने टैबलेट्स सोप के पड़े हुए हैं। तो लेट्स से 3 टैबलेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो 12 में से 3 पड़े हैं, तो बाकी 9 कहाँ गए? बाकी 9 कहाँ गए? उसको हम कह देते हैं कि वो इस्तेमाल हो गए, एग्ज़ॉस्ट हो गए, यूज़ हो गए। जबकि जो बिज़नेस होगा वो उसे कहेगा कि, जो कि मैं अपने घर की बात कर रही थी, तो डेफ़िनेटली वो यूज़ हुए हैं। लेकिन अगर आप शॉप की बात करें, तो शॉपकीपर क्या कहेगा, 2 साबुन पहले पड़े हुए थे, 10 साबुन खरीदे, टोटल 12 थे, 3 अभी भी पड़े हुए हैं, तो 9 कहाँ गए? 9 बिक गए, गुड्स सोल्ड, बिक गए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप उसको डाल देते हैं। So that's how you determine ending inventory, and that's how you calculate CGS at the end of an accounting period. It means that if you are using the periodic inventory valuation system, then within that accounting period, you cannot precisely determine what is the level of inventory that is being in the balance and what is the level of goods sold. For determining these two things, you need to go for physical countdown. Here is the difference between the inventory generalization. If you remember स्टूडेंट्स, जब मैंने जनरल एंट्रीज आप लोगों को करवाई थी, तब मैंने स्टूडेंट्स को बार बार एक चीज़ बताई थी कि जिस चीज़ का आप स्टॉक मेंटेन करते हैं, जिस चीज़ का आपका बिजनेस होता है, जब वो चीज़ आप ख़रीदते हैं तो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। कुछ स्टूडेंट्स ने जब मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाई, तो उसने वहाँ पे टर्म परचेजेस यूज़ की हुई थी। तब भी मैंने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया था कि ये अभी हमारी डोमेन में नहीं आ रहा है, लेकिन फाइनल टर्म के सिलेबस में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि जो आप सिस्टम अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उस सिस्टम के मुताबिक आप लोगों ने अपने अकाउंट्स टाइटल्स को एडजस्ट करना होता है। लाइक हमारे पास 2 ही सिस्टम्स हैं, परपीचुअल और पीरियोडिक। अब आप इसको इन डिटेल स्टडी करें, एक दफ़ा देखिएगा कि जो सिस्टम
परपीचुअल पे चल रहा होता है, वहाँ पर आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री के टर्म यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इतना भी बताया मैंने आपको कि जो ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं इनके पास चॉइस होती है कि जो मर्जी सिस्टम अडॉप्ट कर लें, लेकिन आपकी कंपनी जो होती है, कंपनी क्योंकि SACP के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, तो कंपनीज आर बाउंड टू रिकॉर्ड इन देयर इन्वेंट्रीज अकॉर्डिंग टू परपीचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम। लेकिन अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, या आप एक स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप पीरियोडिक पे भी चले जाएं या परपीचुअल पे चले जाएं, लेकिन कंपनीज बाउंड होती हैं कि वो परपीचुअल पे ही रहेंगी। जब आप एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी उसको जब भी परचेज करेगी, नाउ दिस इज अ टाइम एट द टाइम व्हेन यू परचेज inventory. So how you record that purchases? You made an entry like inventory debit, because inventory is an asset. Increase in assets will be recorded as debit. Now that are the terms of the transaction. If the transaction is made on cash, it means you buy inventory from the supplier on cash, then the entry would be inventory to cash. In case if अगर आपने ये purchases जो है credit purchase है, आपने चीज़ें ख़रीदी हैं लेकिन साथ ही आपने कमिटमेंट कर लिया है कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूँगा, तो इन्वेंट्री टू अकाउंट्स पेएबल entry would be debit to inventory and credit to accounts payable, as increase in liability will be recorded as credit. Now, in comparison to periodic inventory valuation system, at the time of purchase, what will happen? You record inventory, we can debit it by using any other account like purchases, like goods, like merchandises. आप इनमें से कोई सा भी account use कर सकते हैं. So purchases will be recorded as debit, and if the purchases are on cash, then purchases to cash. If the purchases are on account, then purchases to accounts payable. This would be the entry. Now here you record the difference, that over here in perpetual you record inventory, and in periodic you use the account purchases, goods and merchandises. At the time of sale, what is the difference? At the time of sale, basically in perpetual inventory valuation system, two entries are passed simultaneously. Two entries are passed simultaneously. It means very first entry is to record sales. It means when the goods are being sold and they are on cash, then we may pass entry like cash to sales revenue. And if the sales are credit sales, it means udhar pe aapne customer ko cheez bechi hai, then the entry would be account receivable to sales revenue. Same entry is passed in periodic, but in perpetual we pass two entries, like we calculate CGS as well. In perpetual, as I said earlier, it's a very updated system. It's a very स्टेप बाय स्टेप इसकी में रिकॉर्डिंग होती है, कोई रिकॉर्डिंग हम मिस नहीं करते, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं. दैट्स वाई जैसे ही चीज़ बिकती है हम उसकी कॉस्ट को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जो गुड्स बिकी हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी. So as the goods prices are 10,000, these goods were originally purchased by the business by from 7,000 रुपीज़ में आपने उनको ख़रीदा था. सॉरी 7,000 रुपीज़ कह रही हूँ, डॉलर्स में आपने उनको ख़रीदा था. तो 7,000 की चीज़ आपने 10,000 रुपये में बेची है. आपने उसी वक्त आपने CGS भी अपने रिकॉर्ड कर लेते हैं, और आप साथ ही ये अपनी इन्वेंट्री को भी अपडेट कर लेते हैं कि अब हमारी जो इन्वेंट्री है वो 7,000 से कम हो गई है. पहले आपने इन्वेंट्री खरीदी थी 9,100 की, अब उसमें से 7,000 की इन्वेंट्री की चीज़ें आपने बेच दी हैं. तो आपको उस वक्त पता चल जाएगा कि एंडिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी है. 9,100 में से ये 7,000 माइनस कर दें, इतनी तकरीबन एंडिंग इन्वेंट्री 2,100 रुपये की इन्वेंट्री आपकी बिजनेस में मौजूद है. आपने अपने तमाम अकाउंट्स को अपडेट कर लिया है. लेकिन यहाँ पर पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम में सेकंड एंट्री पास नहीं होती. इट मीन CGS रिकॉर्ड्स नहीं होते, एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं होती. तो ये आप एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड फिजिकल काउंट डाउन से रिकॉर्ड करते हैं. अगर आप बात करें क्लोजिंग अकाउंट्स की, अभी लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी थी. तो क्लोजिंग एंट्रीज में परपीचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम में क्योंकि ये ऑलरेडी हर चीज़ अपडेटेड होती है, तो किसी किस्म की कोई क्लोजिंग एंट्री पास नहीं की जाती. लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में पीरियोडिक के अंदर आपको एडजस्टिंग एंट्री पास सॉरी क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ती है. द क्लोजिंग एंट्री वुड बी द एंडिंग बैलेंस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट, द CGS द एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और आपका जो बिगनिंग इन्वेंट्री बैलेंस होता है क्रेडिट, और जो आपने इन्वेंट्री परचेज किया दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज क्रेडिट. अगेन
आप लोगों ने ये जो CGS और एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट है ये आपको फिजिकल काउंट डाउन से क्लियर होगी कि आप अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करेंगे कि एंडिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी पड़ी है, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो डेफिनेटली आप यही कंसिडर करेंगे कि वो सेल आउट हो गया। ओके जी, नाउ दिस इज़ द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम्स। अगर आप इसको थ्योरेटिकल टर्म्स में पढ़ना चाहें, perpetual inventory system is simply a bit complicated, complicated in a sense that you need to record all purchases, you need to record all sales, and at the time of sales, you need to update your balances. And it's considered as expensive because for to maintain a proper record of perpetual, you need a software. You need a software where you place all the data in that, and definitely it's expensive because whenever the things are being purchased तो आप उन पे एक बार कोडिंग करते हैं। अब अगर मैं एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं, तो एक छोटा से छोटा जनरल स्टोर जहां पर आपको एट द टाइम ऑफ सेल वो बार कोड को डिटेक्ट करके आपका बिल बना के दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखते सारी समझ जाएं कि यहाँ पर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम चल रहा है। लाइक आप किसी मेडिकल स्टोर पे भी जाएँ, कुछ मेडिकल स्टोर्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड बिलिंग कर रहे होते हैं, कुछ जनरल स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप पानी की बोतल भी परचेज करेंगे तो आपको एक कंप्यूटराइज्ड बिल उसको स्कैन करके दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपका परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम चल रहा है। लेकिन कोई हाथ से बिल बना के दे रहा है जनरल स्टोर, करियाना स्टोर, तो वहाँ पे पीरियोडिक चल रहा है, राइट। लेकिन वन टाइम कॉस्ट होती है, वन टाइम कॉस्ट होती है सिस्टम आपका जो सॉफ्टवेयर परचेज करने की, और उसके बाद आप समझ लें तो उस पर आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इट मीन्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स जनरेट हो रहे होते हैं, तो उसमें ऐसे आपको बस जब आपकी चीज़ आ रही है तो आपने बार कोड लगा के उसको डाटा में एंटर कर देना है, और जब चीज़ सेल आउट हो रही है तो आपने उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेना है, तो आपके अकाउंट्स खुद ब खुद अपडेटेड हो जाते हैं। वेल इन कंपैरिजन टू पीरियोडिक, रिकॉर्ड कीपिंग ऐसा नहीं होती, और लो कॉस्ट में लो रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, लेस रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। नाउ इन परपीचुअल क्या हम ये कहते हैं कि हम अगर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो आपको क्या फिजिकल काउंट डाउन नहीं करना पड़ता? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। परपीचुअल में भी जो आपके हेवीली प्राइस आइटम्स होते हैं उनमें आप फिजिकल काउंट डाउन करते हैं, ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स फिजिकल काउंट डाउन इसलिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में मेरे पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस मेरी शॉप में मौजूद हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है स्टूडेंट्स, फिजिकल काउंट डाउन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका एम्प्लॉई शॉप लिफ्टिंग, आपका कस्टमर शॉप लिफ्टिंग में, थेफ्ट में इन्वॉल्व तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 20 मिनट के लिए दुकान छोड़ी है और उसने कोई एक फ्रिज, और सॉरी फ्रिज तो मैंने कह दिया, इतना बड़ा हैवी आइटम तो कोई नहीं उठाएगा। अच्छा चलो एक इस्त्री उठा ली है उसने, राइट। इस्त्री है, आपके छोटे छोटे जूसर ब्लेंडर्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस छोटी छोटी भी हो सकती हैं, आपने कोई हेयर ड्रायर है या इस तरह की कोई चीज़, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपकी एम्प्लॉयज़ थेफ्ट में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसलिए आप फिजिकल काउंट डाउन ज़रूरी होता है कि आप फिजिकल काउंट डाउन करके उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच कर लें। फॉर एग्जांपल अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से कह रहे हैं कि 12 इस्त्रियाँ आपके पास फिलिप्स की होनी चाहिए, तो आप काउंट डाउन करें 1 2 3 4 5 हर महीने के बाद एक फिजिकली उनको चेक करें और उसको मैच कर लें कि क्या वाकई बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फिजिकल काउंट डाउन मैच कर रहे हैं। अगर आपकी ये चीज़ें मैच नहीं करती तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और आपने उस प्रॉब्लम को ट्रेस आउट करना है एज अ मैनेजमेंट। एक सेकेंड फ्रेंड्स।